ओके, सबको स्लाइड शो हो रही है? सर ओके, we'll start the lecture. First thing is, our today's topic is related with the services. If I talk about you, services are basically the different necessities, what are the requirements for building or any structure. Means in that, if I talk about the simple utilities that also come within the services. So, for example, if you are constructing any house or building a commercial plaza, you need electrification for that one, water supply system, sewage system, along with that telecommunication, internet, uh, many other facilities. So all those come under the heading of services. So today we will discuss services in detail. Uh, First of all, if I talk about services, what are the services? So services are basically the facilities for a building. Following are some common type of services: water supply, sanitation, gas supply, drainage, electricity, telephone facility, internet facility. So these are, if I talk about generally the groups, this system consists of mainly two types of groups: those who require pipes and those who require wires. Means if you see that water supply scheme hai, sanitation hai, or in that you require pipes. Obviously water should flow within the pipe. वो PPRC का या GI का pipe हो सकता है, and all the sewage will go through PVC pipes. Similarly, some of them require wires, like electrification की wires है, telecommunication, internet. So all require wires. And sometimes, obviously, these services who require wires, जिनमें wires require होती है, तो obviously wire के साथ साथ pipe भी require होता है, because nowadays all the wires are embedded within the walls. अगर आप देखो जितनी भी wires हैं, electrification, telecommunication, सारी की सारी walls के अंदर embedded है. So and that embedded in a wall within the PVC pipe. So it means those who require wires and those who require pipes, and those who require wires, they also require sometimes pipes. We'll discuss one by one pipes और wires की requirements को हम one by one discuss करेंगे कि इसकी कैटेगरी में कौन कौन सी आती है. First, those who require pipe. Pipes में अगर आप देखो तो pipe can be of following: lead type, copper, stainless steel, mild steel, cast iron. Please अपने mics off रखो जरा, खामोश रहो. Mild steel, cast iron, verified clay, concrete, pitch fibers, asbestos, galvanized, PVC. So different types of pipes are available in the market depending upon the requirement. If you see the construction almost 20 years back, अगर आप देखो तो उसमें जो water supply थी within a building, that is made up of GI pipe, galvanized iron के pipes use करते थे, and but now we shifted towards PPRC, polypropylene fiber. Reason is कि वो क्या है, एक तो ये cheap है, durable है, and also with the passage of time, like in GI pipe में सारी की सारी rusting हो जाती थी, and the area is reduced, उसका pressure भी कम हो जाता था. But case of PPRC, there is no such rusting phenomena. ठीक है, और इसकी लाइफ भी ज्यादा है, चीप भी है, लेड है, कॉपर के, स्टेनलेस स्टील के पाइप्स हैं. Same is the case for sewage system. If you go some year back, so we were using reinforced concrete pipe, RCC के pipe use करते थे sewage के लिए. Nowadays we are using PVC pipes. उनकी लाइफ भी ज्यादा है, ड्यूरेबिलिटी, लीकेज के भी चांसेस नहीं है. ठीक है, उनमें क्रैकिंग वगैरह के चांसेस होते थे फॉर RCC pipes. So in case of pipe we have a different types of material. In case of a wire, अगर आप वायर स्ट्रक्चर की बात करो तो मेनली इट्स नॉन वायर मटेरियल इज नॉन एज कंडक्टर थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली, एंड कंडक्टर कवरिंग द मटेरियल इज कॉल्ड एज इंसुलेटर. अगर आप एक सिंपल वायर की एग्जांपल लो, सो इनसाइड मटेरियल कंडक्टर है, आउटसाइड जो उसकी कवरिंग है दैट इज इंसुलेटर. लेट्स से मोस्ट कॉमनली यूज कंडक्टर इज कॉपर. ठीक है, and PVC is used
to cover that wire. So if I talk about this कि जी क्या नाम है wire में copper अगर है copper is basically a most commonly used conductor. If you have means watch these ads available on internet या TV पे देखे हो, so normally ad यही देते हैं that 99.999% copper. So it is not the case that either it is 100% copper or not. Main thing is conductivity. If you go to our electrical engineering department of civil यूईटी, अगर आप यहाँ देखो तो वहां पर उन्होंने प्रॉपरली इसके ऊपर हर केबल के टेस्ट किए हुए हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, एंड द मोस्ट यू कैन से गुड वन अप टिल नाउ इज पाकिस्तान केबल. ऑब्वियसली उसका कॉपर भी प्योर है एंड इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी मच. अगर उसके बाद देखा जाए तो ये जो फास्ट है जीएम और इस तरह की केबल्स है, ये सारों की ऑलमोस्ट सेम कंडक्टिविटी है. बट द वेस्ट वन पाकिस्तान केबल मिलती कम है बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन कराची, वहां की डिमांड ही पूरी नहीं होती. सो नॉट ओनली द परसेंटेज ऑफ कॉपर बट कंडक्टिविटी आल्सो मैटर. सेम इज द केस पीवीसी जो कोटिंग है वो कोई भी शॉर्ट सर्किट जैसी चीजों को बचाती है फॉर वायर सिस्टम, उसकी हीटिंग और इन चीजों को. सो सर्विसेज रिक्वायर्ड पाइप्स एंड वायर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पाइप्स पे बात करें, सो वाटर सप्लाई सिस्टम. In case of a water supply system, mostly we have two types: cold water supply and hot water supply. So if I start with the cold water supply, it's used within the building for drinking purpose, cooking, sanitation, washing, gardening. So these are some primary means you can say usages. So type of cold water supply system, either direct or indirect. So what's the difference between direct and indirect? If the overhead means if the water which you are getting from outer source like Wasa या water and sanitation agency in Lahore, Multan में different होगी, or if you have a direct water supply from your own society like DHA या बैरिया में कहीं पर भी अपनी society का water supply system है, and that pressure remain constant within the pipe throughout the day 24 hours. So you may go towards direct water supply system जिसमें आपको directly water आप थ्रू आउट द बिल्डिंग सर्कुलेट कर सकते हो. May be available 6 hours, 8 hours per day. So in that case, maybe you should have to go for indirect water supply. The difference is in case of direct water supply system, the water is directly distributed within the building. And in case of indirect water supply system, first it feeds the overhead water reservoir, and after the feeding of that one, all the water is supplied within the building. So I explain all of them, direct and indirect. Water is directly drawn from service pipes of Wasa, and obviously within the building and outside the building there are different types of walls which are used with this supply system. Connect or isolate. First one is stop wall. Normally this wall is used at the entry point of a water from outer source to the inside building. ये देते हैं कि कोई भी शट डाउन करनी हो सप्लाई या कोई ब्लॉक करनी हो, कोई प्रॉब्लम है, सो कनेक्ट और आइसोलेट द वाटर सप्लाई फ्रॉम द मेन सर्विस. और ड्रेन कॉक के connect or isolate the water supply you can say of the buildings. ये basically drain के लिए भी एक कॉक यूज करते हैं जो मेन सप्लाई से इसको कट करता है. Now if I talk about direct water supply, I'll explain you with figure also. First I'll tell you that what is this direct water supply. In this system, please अपना mic off करो. राकिब अपना माइक ऑफ करो. Okay. In direct water supply system, main service pipe is considered as constant, and in this system water is directly distributed in the building through smaller diameter pipe. But for hot water provide for storage tank or by rising main into the storage reservoir, lesser pipe length is required. अच्छा, direct water supply भी है. Let's say I give you an example. कोई भी एक society है and they ensure that 24-hour water is available at same pressure. So you can go for direct water supply system, but still you have to provide the overhead water tank. Reason is that overhead water reservoir feed the hot water geyser system.
ताकि वो एक सर्टेन हाइट पे हो, उसमें प्रेशर ड्रॉप ना आए। अदरवाइज देयर इज अ चांसेस कि उसमें जो है ना वाटर ड्रॉप के प्रेशर का कम होता है, सो गीजर कैन नॉट बी फिक्स डायरेक्टली विद द मेन सप्लाई, बट लेस इन केस ऑफ डायरेक्ट ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पहले ओवरहेड को फिल करो और फिर बाकी सप्लाई करो, सो लेसर वाटर पाइपलाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट सिस्टम। आई कैन शो यू दिस विद दिस सिंपल फ्लो चार्ट। अगर देखो ये मेन सर्विस पाइप है 25 mm की, इट फीड डायरेक्टली थ्रू आउट द बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ जहाँ कनेक्शन चाहिए अप्लायंसेस को, फर्स्ट फ्लोर पे, एंड एट द एंड इट गो टू द ओवरहेड रिजर्वायर। लेटर ऑन ओवरहेड रिजर्वायर से एक पाइप निकाले, दैट इज फॉर द हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है, एंड दिस शोज अस द ओवरफ्लो के जब टैंक फिल हो जाता है। सो नॉर्मली थ्रू आउट द वे जितना जहाँ जहाँ कनेक्शन चाहिए वी गिव दैट कनेक्शन, and at the end it feeds the overhead reservoir. But in case of indirect system, the scenario is different. मैं ये सारी चीज से पहले आपको थोड़ा indirect समझा दूं. In case of indirect system, if you see, first water go directly into the overhead. कहीं पर भी इसका स्कीम नहीं है. Instead, only when connection is given, that is for drinking water. कि direct drinking water आप withdraw कर सको. After that, directly go to overhead. And after that we take the supply from first floor, ground floor हम supply ले सकते हैं. And it's better to give separate supply for ground floor, separate supply from overhead reservoir to first floor, and separate supply for Excuse me, sir. sir Reason हाँ जी kindly बोल रहे हैं, बोले सर बार बार मूव कर रहा है कोई मीटिंग से, प्राइवेसी लगा दें सर। एक मिनट। अच्छा, मैं समझा था कि मैंने लास्ट टाइम लगाई थी तो तंग नहीं हुए, मैं समझा था कि सुधर गए हैं, पर ये सुधरते नहीं है। एक मिनट सर। चलो अब नहीं करता कोई। ओके, in case of indirect water supply system, हाँ जी बोलो। सर इससे पहले कोई समझ नहीं आई, बोलो। बार बार कोई मूव कर रहा तो कहाँ से रिमूव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से? यस सर, इधर से कर जी, इधर से करना I was talking, I was talking about cold water and hot water supply. Cold water में अगर देखो तो direct, it is used for cooking, drinking, sanitation, and we have two type of system for cold water. First one is direct and second one is indirect. The difference between them is, in case of direct, we assume or we that company or that society water pressure out 24 hours. तो उसमें क्या है, आप डायरेक्टली वाटर सप्लाई कर सकते हो विद इन द बिल्डिंग टू गिव अ कनेक्ट, बट इफ देयर इज अ चांसेस कि वो 8 आवर्स पर डे काम करता है, 10 आवर्स डे प्रेशर मेंटेन रहता है, लाइक ये जो वासा वगैरह की सिस्टम है, सो इन दैट केस यू शुड गो फॉर इनडायरेक्ट. So difference is, for direct you directly feed your directly, or in case of indirect first you feed your overhead reservoir, ठीक है, overhead reservoir को fill करो and after that you give the connection to all, like और उसमें obviously different walls भी use होंगे, stop walls है, it's connect isolate the water supply from the main service pipe, यानी main service pipe और within the building पे आप ये stop wall use करते हो. ये अपना माइक ऑफ करो प्लीज, ठीक है, ये जवाद अपना माइक ऑफ करो. सो इफ इट सप्लाई यू कैन से वाटर डायरेक्टली फ्रॉम स्टॉप वॉल जो है ये डिस्कनेक्ट करता है मेन सप्लाई से विद इन द बिल्डिंग वट एवर इज द सप्लाई सिस्टम. अगर किसी वजह से भी रोकना बंद करना है, सो यू में यूज दिस टाइप ऑफ स्टॉल वॉल एंड स्टॉप वॉल. एंड ड्रेन कॉक जो है ये आइसोलेट करता है इनर वाटर सप्लाई, सॉरी वाटर सप्लाई सिस्टम को आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग से. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट वन. अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं,
direct or indirect का. So in this system, main service pressure is considered constant. And in this system, what is directly distributed in the building through smaller diameter pipe. But for hot water, still you have to provide the overhead reservoir, and water have to store by rising it into the main storage. And also lesser pipe lengths are required. अगर आप इसमें देखो तो डायरेक्ट वाटर सप्लाई में सिंपल चार्ट से एक्सप्लेन करूं. फर्स्ट थिंग, इन पाइप है प्रेशर 25 mm का. इट डायरेक्टली गो डायरेक्ट वाटर सिस्टम में आप यहां से जहां अप्लायंसेस है ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, यू टेक आउट द कनेक्शन एंड एट द एंड it feed the overhead reservoir. Later on you take a separate supply for hot water geyser, और जो भी extra water होगा during filling जो overhead के लिए वो उसमें से बाहर निकल जाएगा. ठीक है. So basically this is a system of direct. In case of an indirect, the system is a bit different. Indirect में क्या है, ये मैं theory 1 में explain करता हूँ. First I'll explain you with the figure. First, water come from the main service pipe and it directly go into the main water overhead reservoir, जिसे storage system बोलते हैं. कहीं पर भी सप्लाई नहीं देंगे. It means only one supply is given for direct drinking water. कि अगर कोई आपको पानी पीने के लिए चाहिए उसके लिए एक दे दिया, otherwise no supply at ground floor, no supply at first floor. First it feeds the overhead reservoir. After that you take the supply out from for first floor, second floor for hot water. आप सबके लिए लेना supply. So preferably you should try that you take the separate supply system for each floor. Ground है, first है, second floor है, हर एक की supply वहां से separate है. हर एक का overhead water tank water geyser के लिए supply different है. Reason is if you take one supply out and supply it to first floor, ground floor, तो pressure drop हो जाएगा. And after that, obviously, whenever if you open the tap at the ground floor, the first floor पे पानी नहीं आएगा. Take the separate supply for ground floor, take the separate supply for the first floor for each of the floors, and also separate for a geyser. So this gave us a simple example of indirect. First, water is being separated in the building by means of a different size of a pipe. The size of pipe depends upon the quality of water, length of pipe, pressure available. More pipe lengths are required, obviously, as compared to the direct. Air pockets may be provided by provided air locks, क्योंकि जारी बात है overhead से आना है तो उसके बीच में air pocket भी होनी चाहिए, और you can say walls भी आएंगे, open air walls भी आएंगे. So water supply is controlled at various points by means of a walls or stop walls. Walls, अब इसमें कौन से walls आते हैं? Majorly, if you fill the tank, तो tank जब fill हो तो automatically close हो जाए. So उसमें obviously ball walls use करेंगे. ये आ गया आपको overhead water tank के structure में भी दिखाता हूँ. That whenever it fills the tank, automatically it closes the wall. ठीक है. Same is the case with the gate wall. It isolates or shut down at various parts. Some also we provide a reflex or non-returnable wall. It is used to maintain one directional or unidirectional flow in pipeline. यानी अगर overhead water tank से पानी आता है building में, ये ना हो कि वो पानी दोबारा main supply में मिलके बाहर निकल जाए. So whatever the water which is coming from main supply to the within the building, it wall allow only unidirectional flow. It never allow that inside of the water go outside. वो automatically close हो जाएगा. And pillar tab is basically used to control. It's a simple tab. इसकी figures जो सबकी वो आगे आपको show करते हैं. Now next is hot water supply. Obviously, hot water supply provide hot water for bathing, spacing, washing, boiler, electricity. बहुत सारी जगह use करते हैं आजकल. Not only for geysers, also be used for radiators. अगर आपने देखा हो नई construction में आजकल hot water के supply within the building walls के अंदर embedded है, and we use radiator in each rooms जो कि hot water circulate करता है, तो आम heater से ज़रा different है. Especially this system is very common in Europe and especially nowadays in northern Pakistan. ठीक है. Electrical heats के geysers के लिए हम ये use करते हैं hot water supply. In type of hot water supply, same the दो types है, direct और indirect. Reason different क्या है? In case of a direct system, water circulate between boiler and overhead reservoir. Overhead water reservoir से पानी आएगा directly boiler में and then we take it out. Simple. जो geyser है ये boiler में से. और indirect में क्या है? Water circulate between boiler and storage. After boiler we store it. We don't allow it to mix with the other one.
एंड एक्सपेंशन इज प्रोवाइडेड फॉर एक्स्ट्रा चार्ज। वहां पर क्या है कि इनडायरेक्ट में वाटर को ओवरहेड से रिजर्वायर से लेंगे, देन वी पुट इट इनटू द बॉयलर आफ्टर हीटिंग द स्टोर। ओके, these two figures show us कि अगर overhead water reservoir है, first you feed that one, take a water out into the cylinder and the boiler, and after that it directly go outside. Direct में कोई storage नहीं है, directly वो out हो जाता है after hotting that one. In case of an indirect water fill into the overhead reservoir, it come into the boiler, boiler से वो storage में जाएगा, after that जहाँ पर भी use करना है, otherwise it go directly and feed the overhead reservoir. So difference is कि इसमें एक बॉयलर की फैसिलिटी है बॉटम के ऊपर, and after that you use it from here, ठीक है? But in that case it directly go into the heater and you use it. Simple is direct हो या indirect हो, you always need a overhead reservoir for heater या hot water supply. अच्छा, cold water supply की अगर मैं simple example दूँ, जिसके पास the typical layout, one more thing मैंने अभी बताना शायद भूल गया, at the start whenever you are designing any project or you are trying to make that project, remember this thing in mind कि you should have all these water supply, sanitation, electrification, telecommunication, internet supply scheme. आपके पास proper designs होनी चाहिए इसकी कि कहाँ से main supply आ रहा है, किस जगह move कर रहे हैं, water का, sanitation का, electrification की wires का, from fan box वो कहाँ shift हो रहा है. So you should have all this in drawing. Later on कोई भी problem आए, you only open up that one and you can repair or you can maintain, do the maintenance. अगर ये सारा कुछ नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा to trace the fault कि कहाँ इसकी supply है, because everything is embedded later on within the wall. Electrification भी embedded हो जाएगी, water supply भी, sanitation भी. If it is available on drawings तो वो आपके लिए easy होगा detect करना. Let's say अगर मैं आपको simple example दूँ, cold water supply है, this is the main company pipe, and after that we provide stop valve at the start of the boundary, और उसके साथ वो पाइप अंदर आएगा और अंदर आके वो जहां जहां रिक्वायर्ड होगा ड्रेन पाइप और ये वो सब के साथ वो कंबाइन होगा, ठीक है? नेक्स्ट इज कोल्ड वाटर सिस्टम, जो डायरेक्ट सिस्टम है, जो पहले फ्लो चार्ट शो किया, दिस इज अनदर फ्लो चार्ट, वो उसी सप्लाई स्कीम का कि मेन पाइप से व्हिच इज 20 mm you supply to the 6 with the 12 mm, फिर सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे देखो तो जहां जहां वॉशरूम इसके अंदर कनेक्शन हो रहे हैं, एट द एंड इट फीड द ओवरहेड रिजर्वायर, और उसके बाद उसके लिए सिर्फ सप्लाई लेंगे फॉर गीज, ठीक है? दिस इज अ डायरेक्ट में देखा जाए तो आपका पूरे बिल्डिंग को सप्लाई करके एंड पे जाता है ओवरहेड रिजर्वायर, ठीक है? इन केस ऑफ इनडायरेक्ट, ऑब्वियसली फर्स्ट इट फीड द ओवरहेड रिजर्वायर. अगर आप ये कनेक्शन देखो, 12 mm का जो सर्विस पाइप है, इट डायरेक्टली गो from this point bottom से 12 mm का जो है ये directly go into the overhead reservoir. After that we take all separate connection for ground floor, for first floor, for geyser, सब के लिए अलग-अलग connection ताकि pressure drop ना हो, ठीक है? Next is this give us a typical structure of a overhead reservoir which is called as water cistern. अगर water cistern में देखो इसमें तो typically एक वाटर सप्लाई के थ्रू पहले पाइप पानी जाएगा ओवरहेड रिजर्वायर में, along with that we attach a ball valve. इस ball valve का जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, it is used within the you can say within inside of the overhead water system. रीजन क्या है, जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा ये नीचे जाएगा, बॉल खुल जाएगा, वाटर डायरेक्टली इसमें फीड होता जाएगा. When it will fill, ये ऑटोमेटिकली बॉल जो है उसके ऊपर क्योंकि फ्लो करता है, ये टॉप पे चले जाएगा, एंड एट द एंड वो क्या हो गया, ऑब्वियसली वो इसके अंदर से जब फिल हो जाएगा तो वाटर क्लोज हो जाएगा फ्रॉम द बॉल. द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू फिल द गैप, और यू कैन से द मेंटेन द लेवल हाइट ऑफ विद इन द वाटर सिस्टम. वाटर सिस्टम जहां पर फिल हो जाएगा वहां पर इसको वो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा. These two are the separate vent pipes. One is for the warning के जी अगर वो वॉल बंद नहीं होता, एक यहाँ पर पाइप देंगे कि पानी भर गया, वो ऑटोमेटिकली आपको वार्निंग दे देगा. And vent pipes are always provided within the you can say overhead water reservoir. Vent pipes का मकसद क्या होता है, अदरवाइज वो वाटर उसके अंदर बिल्कुल क्या कहते हैं चोक हो जाता है, एंड इट विल नॉट अलाउ द वाटर टू गो आउटसाइड. So जब तक उसकी एयर नहीं निकलती वेंट पाइप के थ्रू, इट वाटर विल नॉट फ्लो फ्रॉम दैट वन. नेक्स्ट इज
These shows us a typical taps और balls. आपने देखा इस तरह के balls आपने मार्केट में देखे भी होंगे और अपने घर में कभी काम करवाया भी होगा. This is a ball and this one is simple. ये ball valve है. ये simple tap है with certain valve. Gate closet है. ठीक है. Okay, now next come to the drainage system. If I talk about drainage, तो drainage में देखा जाए तो obviously main purpose क्या है, जो भी water आप use कर रहे हो water supply में, drainage take that water out, ठीक है? Obviously जब वो water को बाहर लेके जाएगा, either you are using it for washing, drinking, for cooking, rain water का disposal है, ठीक है? In sanitary system, different appliances are used like soil appliances, जिसे हम normally water closet या urinals कहते हैं. You can say waste appliances like wash basin, sinks. Drainage में बहुत सारी चीजें आएंगी. Simple rain water भी है, water supply का जो कि हम जो sinks वगैरह में use करते हैं, and in urinals और traps जहाँ पर use होते हैं वहाँ से soil waste भी निकलता है. ठीक है. So all the drainages are required. Majorly there are 3 type of drainage system. Combined है, totally separate और partially separate है. Combined में क्या है कि जी आपका जो urinals या WC है उसका soil waste भी और wash basin का waste भी और shower वाले एरिया का, वो सब का सब combine होके इकट्ठा जाए एक बार उसमें inspection chamber में go outside of the building. That is combined. Totally separate में हर एक की जो water that goes separately outside. ये totally separate normally कम use करते हैं. Reason इसके आपको बहुत ज़्यादा pipes की length required होती है PVC drainage की, और इसमें मतलब effort भी ज़्यादा, time भी ज़्यादा, cost भी ज़्यादा लगती है. But sometime we have to do that one कि जहाँ पर blockage के chances और इन चीज़ों के chances ज़्यादा हो, so और अगर आपने उसको totally मतलब combine नहीं कर सकते तो partially कर लो. Means take the water out of sinks and shower area combinedly, और जो soil waste है उसको separately ले जाओ. So that give us the partially separate drainage system. So majorly night soil and wastewater is called as sewage, and sewage pipe containing sewage is called as drain when it is within the owner boundary. Beyond that it is connected with the outside WASA authority, उसे sewer बोलते हैं. Means जो भी pipes within the building है उसे सीवेज बोलेंगे, और जब वो सारा का सारा कंबाइन होकर आउटसाइड मेन पाइप में जाएगा उसे कोई सीवर पाइप बोलेंगे. ठीक है. मैन होल्स. अच्छा, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मैन होल एंड इंस्पेक्शन चैम्बर. अगर आपने देखा हो तो घरों के अंदर वो छोटे छोटे से हौदियां बनाई होती हैं. दैट इज कॉल्ड एज इंस्पेक्शन चैम्बर बिकॉज देयर हाइट इज लेस. बट if that inspection chamber is more than 900 meter, जो कि घर से बाहर बनी होती है बड़ी वाली हौद, उसे बोलते हैं मैन होल. So for inspection and cleaning we need these chambers. ये normally provide काम करते हैं 2-3 पाइप कंबाइन हो रही हो एक जगह पर विद इन द, मतलब एक ऐसा पॉइंट पे जगह पर होती दी है या 2 वॉशरूमों का सीवरेज कंबाइन होता हो विद इन चेंज इन डायरेक्शन, यानी 90 डिग्री पे पाइप बेंड होता हो, तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एल्बोज प्रेफरेबली भी यूज दिस इंस्पेक्शन चैम्बर के इजीली वो फ्लो भी कर देता है और उसमें ब्लॉकेज के चांसेस कम होते हैं. और देयर इज अ चेंज इन ग्रेड. चेंज इन ग्रेड मींस स्लोप के ऊपर कई चेंज आ रहा है. मींस अगर आप देखा जाए तो इनर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग से सीवरेज सिस्टम बाहर आ रहा है गैराज में, so there is a level of difference, और गैराज से उससे बाहर जा रहा है मेन रोड पे, so that difference level वहाँ फॉरन कोई एल्बोज या टीज तो नहीं डालोगे, वहाँ पर कोई इस तरह की चीजें डालोगे तो ब्लॉकेज होगी. तो प्रेफरेबली यू मेक इंस्पेक्शन चैम्बर, तो वो 2 पाइप का लेवल डिफरेंस जो है वो इंस्पेक्शन चैम्बर में कवर हो जाता है. so if the depth is more than 900 meter inspection chamber, then it's called as manhole. ठीक है. sanitation and fixture, अगर आप देखो sanitation sanitary fittings are provided for user to use the facility and fixture provided within the fitting of that one. Fittings के hand wash hand bars हैं, water closet है, budget है, sinks है. So these all things are provided and it should be planned before कि कितने बेडरूम का होंगे एंड हर वॉशरूम के अंदर कनेक्शंस किस किस जगह आएंगे. सो एवरीथिंग ये फिटिंग सारी के सारी कवर होती है. gas supply, obviously gas supply is also required throughout the building if you want to make switch on the heaters
और obviously one connection is required for geyser. It also depend अगर आपके geyser combine नहीं है and you are using separate geyser for each washroom तो उसके connections भी होंगे. And later on क्या नाम burners वगैरह kitchens के लिए gas, since gas is highly explosive material and normal water supply में तो वो अगर वो उसको properly join करते हैं, if there is any leakage that can be filled with the help of a water you can say seepage. But in case of gas only you can smell that one कि अगर कहीं पर leakage नहीं है या उसको वो fire ignition करके check करते हैं. So it's highly explosive material when mixed with the air. So prevent them from leakage. Temperature change may lead to condensation in pipes. Okay, sometime it happen कि वो pipes even embedded भी हो तो temperature change की वजह से उन पाइप में गैस जो है ना वो कंडेंस हो जाती है. And the reason for condensation is high temperature. अगर ये स्पेशली होता है अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो चले जाए जैसा नॉर्दर्न एरिया मरी वगैरह उधर के जो है उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू गैस and it will not travel within the pipe. So gas meter and cocks are provided at the start of the building. Electrical system में अगर देखो electrical system is provided for several like lighting है, heating है, electrical appliances के लिए आपको चाहिए. और इसमें electrical system में दो तरह के voltage system है 240 240 या 220 कह लो और दूसरा 110. पाकिस्तान में 110 ही यूज होता है, नॉर्मली 220 से ऊपर वोल्ट्स यूज होते हैं. Electrical system में आप is provided or divided into series of circuit like light, electricity, heating, power circuit. Whole system must be earth by connect the electrical system passer into the ground. Normally earth आजकल एक बहुत different criteria हो गया है कि नहीं provide करते, but before that one most of the person they use. एक तो ये डैमेज कम होता है अगर कोई शॉर्ट सर्किट इस तरह की चीजें और हाई रेजिस्टिविटी. अब तो एक और भी चीज यूज होती है बेचार फ्यूज एंड यू कैन से स्विचेस कि जहां पर भी आपका कोई थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ नहीं फौरन फ्यूज स्विच ऑफ हो जाता है एंड जब तक वो प्रॉब्लम लाइट सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स. टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग के नॉर्मली हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं nowadays we provide embedded within the wall कि जब भी होती है तो पाइप ले डाउन कर देते हैं. इवन इन केस ऑफ टॉप स्लैब उसमें भी फैन बॉक्स और पाइप्स और कंडुइट्स ड्यूरिंग पोरिंग रख देते हैं. लेटर ऑन ऑल द पाइप्स जो उसमें सारी वायर्स उसमें ले डाउन कर देते हैं बिफोर आफ्टर डूइंग द प्लास्टर हो जाता है सारा वॉल को, सारे के सारे वायर बीच में बेंड हो गए एंड यू कैन टेक द वायर आउट फ्रॉम दैट पाइप्स. जिस जगह आपको कनेक्शन चाहिए यू कैन टेक दैट फ्रॉम देयर. सो दिस इज कंप्लीटली एम्बेडेड. साल पहले देखो तो उस वक्त वुडन के पैटर्न्स भी यूज करते थे ओल्ड सिस्टम ऑन वॉल. ये एम्बेडेड नहीं होते थे, ऑन सरफेस थे. पीवीसी के पाइप्स या मेटल ट्यूब्स ये ऑन सरफेस यूज करते नहीं है before, but nowadays we use you can say preferably PVC pipe जो कि embedded होते हैं within the building. ठीक है. Next is telephone. Obviously one more thing, telephone है, internet है, इस तरह के जो भी services है, never lay down in the same pipe in which electricity wire go. इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है वो हाई वोल्टेज की होती है और ये जो टेलीफोन और अदर सर्विसेज लाइक इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन और यू कैन से केबल, ये सारी की सारी वायर्स में लो वोल्टेज होती है. सो प्रेफरेबली टेक अ सेपरेट पाइप फॉर ऑल ऑफ देम. उनको इकट्ठे कंबाइन कर सकते हैं बट नॉट गो फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, इफ यू आर टॉकिंग टॉप रूफ स्लैब, अगर टॉप रूफ की बात करें दैट ड्रेनेज सिस्टम आल्सो मैटर्स अ लॉट कि अगर ये तो विद इन द बिल्डिंग तो ग्रेड के चेंज से, बिकॉज वन थिंग रिमेंबर इन माइंड दैट ऑल द वाटर सप्लाई दैट फ्लो अंडर प्रेशर, उसमें तो आपका प्रेशर के थ्रू पाइप फ्लो कर जाता है एंड ऑल द सीवरेज सिस्टम शुड गो विद ग्रेविटी. तो स्लोप चेंज पे प्ले मैटर करना है, आपका ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टॉप रूफ, so roof tiles जब लगती है रूफ की होती है that should also be matter
अलॉट के अगर आपका पूरी लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, इस पूरी की एग्जांपल लो तो इसमें ये पूरी एक स्लैब है, टॉप रूफ स्लैब. If I provide only one you can say drainage at the end, यहाँ सेंटर यहाँ पे कॉर्नर पे दे देते हैं या इधर दे, so I should maintain this all level high as compared to this one, so that water flow directly in all direction through this. But here it provided two drainage, one is on this side, second is on this. So what they have done, they make the center part intentionally upward, like you have seen in roads में देखा हो तो सेंटर से रोड ऊपर होती है और साइडों से नीचे. सेम इज द केस रिज लाइन में सेंटर से रोड मतलब ये जो छत है ये ऊपर होगी एंड ऑल इट इज ऑल द स्लोप आर टुवर्ड्स द रूफ ड्रेन, वो वैली की तरह डाउनवर्ड होगी, वैली लाइन की तरह. सो इट मींस व्हेनेवर रेनफॉल अकर दिस सेंट्रल पोर्शन स्प्लिट द वाटर ऑन बोथ साइड डायरेक्टली टू द रेन. इफ आई कट दिस इन क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन में देखो एलिवेशन, ये प्लान है ना, इसमें एलिवेशन में देखोगे तो आपको ये नजर आएगा दैट एट द सेंटर द फिल इज मोर and at the drain side the fill is less, water automatically flow under gravity and it go directly into this one. But one thing we normally provide a strainer at the top. strainer का मकसद ये होता है कि जो गंद वगैरह शॉपर या पत्ते पुत्ते इसमें ना फंसे और water can directly flow to that one. ठीक है, जिसके बाद a simple example of sloping, यानी कि रूफ के ऊपर से डायरेक्टली ये गटर और लीटर में से जाके पानी नीचे फ्लो कर जाएगा. सेम इज द केस. अच्छा, ये साइज ऑफ अ गटर या पाइप ये डिपेंड करता है मैक्सिमम रेनफॉल इन पर आवर. अब लाहौर में शायद रेनफॉल प्रॉब्लम इज नॉट अ बिग इशू, बट इन नॉर्दर्न एरिया heavy rainfall and continue for number of days, so for that obviously you required a rainfall data per hour and also the diameter of that gutter along with the slope. उस पाइप का डाया सारा आपको कैलकुलेट करना पड़ता है so that water can flow from that कि वो पाइप उस पर्टिकुलर रेनफॉल के लिए शॉर्ट ना रहे. These table give us some guidelines के जितने स्लोप करनी है पर एवर. some example surface water drainage के ऊपर आप लोगों ने इस तरह के पाइप लगे होंगे दीवारों के ऊपर देखे होंगे जो रूफ सप्लाई से डायरेक्टली नीचे पानी लेके आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज an inspection chamber. I told you before कि घरों के अंदर ये इंस्पेक्शन चैम्बर बनता है. इसका पर्पस भी यही है that normally all the water either from washroom, kitchens, सारा का सारा combine होता है through this inspection chamber and after that it take a water out from the main one main pipe से वो उसको main supply सीवर से जो आपका बाहर मेन होल से कनेक्ट कर देते हैं. इंस्पेक्शन चैम्बर में भी ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ अ ब्रिक. साइड इसकी ब्रिक्स की होती है, बॉटम पे कंक्रीट पैड होगा एंड आफ्टर दैट a pipe which is embedded within the concrete and most of the time the inner portion of these walls, ये यानी कि जो ब्रिक वर्क की वॉल्स बनाई गई है, इनर पोर्शन उसका मटेरियल अवेलेबल होता है जो कि सीमेंट में मिक्स करके इसको कंक्रीट सा बना के इसकी वॉल्स पे करते हैं, सो दैट क्योंकि डायरेक्ट वाटर इसमें हर वक्त फ्लो कर रहा होता है, सो दैट सीपेज कैन बी अवॉइडेड अप टू सर्टेन एक्सटेंट. ठीक है, एंड दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ chamber walls and concrete के pipe concrete के pipe embedded and all this. Now these give us pipes and joints arrangement के अगर आप देखो कि pipes some year back we use these type of pipes जो कि clay drainage pipe होते थे या RCC के pipes होते थे. Nowadays we go for PVC and also we use these type of oblique junctions, P-trap ताकि इसमें पानी retain रहे and smell will not occur. Q-trap है, so also if you want to join two pipes, sewerage pipe at certain angle, sometimes it's 40, 30, 60 angle, so we use these sort of joints and junctions. Okay, now next is ये simple walls or joints show के different walls के types है along with the arrangement if you want to join. Also remember this thing in mind that it depends the pipes also. पाइप्स में भी ये डिपेंड करते हैं कि एक पाइप दूसरे पाइप से किस एंगल पे ज्वाइन हो रहे हैं. लेट्स से इन वाटर सप्लाई स्कीम इफ आई वांट टू जॉइन टू पाइप एट द कॉर्नर ऑफ अ वॉल तो वो 90 डिग्री पे बेंड होते हैं, वी यूज एल्बो. अगर एक पाइप से एक और कनेक्शन लेना है वी यूज टी. इफ आई वांट टू जॉइन टू पाइप्स टुगेदर आई यूज सिंपल सॉकेट. सो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है फॉर दैट वन. और आल्सो वी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स एंड जॉइंट टू कंट्रोल और सर्कुलेट द वाटर. ये different pipe joints है एक पाइप को दूसरे से. Sometime we use the older one
और आजकल तो वो सिंपल वो पीपीआरसी में उसको करते हैं हीटर के साथ, तो उसको ज्वाइन कंबाइन कर लेते हैं. So this is all towards the services lecture. If anyone have a question in all the lecture, please you may ask. Wait कर रहा हूँ किसी को कोई throughout the lecture कोई question हो one by one. सर हाँ जी उज़ैर. अब स्लाइड्स आ रही हैं, पहले भी इनमें काफी ज्यादा फिगर्स हैं, तो ये मतलब हमने सिर्फ समझनी है या फिर ये पेपर में बनानी भी आ सकती हैं? नहीं पेपर में नहीं आएगी, सिर्फ आपके समझने के लिए कि किस साइड के किस टाइप के जॉइंट्स हो सकते हैं, किस टाइप के वॉल्स हो सकते हैं, यूज भी किए होंगे, घर में देखे भी होंगे. ये सिर्फ आपकी हीट ट्रैप कैसा होता है उसकी शेप पता होनी चाहिए, बॉटल ट्रैप, एल्बोज, मतलब ऑब्लीक जंक्शंस, यू शुड नो द शेप कि व्हेनेवर यू गो टू द मार्केट तो आपके लिए पहले नई चीज ना हो. ओके सर, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन थ्रू द लेक्चर? अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, आई एम हियर, प्लीज आस्क. सर ये प्लम्बिंग में सोलर लाइन कौन सी होती है? और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब कि जहाँ पे प्लम्बिंग में क्या होती है? प्लम्बिंग में सर सोलर लाइन, सॉलिड लाइन ये कहाँ देखे आपने, किस स्लाइड नंबर पर देखा है? नहीं सर यहाँ पे नहीं है, ये वैसे मैंने जनरल क्वेश्चन पूछा है. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. सॉलिड लाइन वो आप ड्राइंग की बात कर रहे होगे? यस सर, एग्जैक्टली. ठीक है. और क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ जी सर, दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज अगर हम वॉशरूम की बात करें, डब्ल्यूसी की बात करें, डब्ल्यूसी में से जब हम डब्ल्यूसी का जो पाइप है उसकी हम उसको दूसरे पाइप से ज्वाइन करते हैं, तो उसको 45 या किसी एंगल से ज्वाइन करते हैं, उसको डायरेक्ट क्यों नहीं ज्वाइन करते? इसकी क्या रीजन ये है कि जब भी आप उसको 90 डिग्री पे ज्वाइन करोगे, या प्रेफरेबली भी ज्वाइन इट आइदर बाय टी और 45. टी में भी ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं, ठीक है. 45 में ब्लॉकेज के चांसेस कम होते हैं, वाटर बड़ी इजीली फ्लो कर देता है. यानी कि वो अगर एक साइड से आ रहा होता है तो दूसरा उसके साथ कंबाइन होके प्रेशर के साथ फ्लो कर देता है. टी में ये होता है कि वो एक साइड से चल रहा है, जब दूसरा आता है तो चांसेस है कि वो ब्लॉक कर दे, ठीक है, या वो दूसरे का प्रेशर रोक दे. सो प्रेफरेबली हम 45 यूज करते हैं. जहां तक वो सॉलिड लाइन की बात कर रहे हो, आई डोंट नो, अब क्योंकि ये सेमेस्टर ही ऐसे चला है. बिफोर दैट लास्ट ईयर भी आपको जो सी एंड जी की लैब थी उसमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता था, एंड यू हैव टू ड्रॉ मैनुअली the electricity, water supply and sewerage system. ये सारा का सारा आप करते हैं AutoCAD. A full length project of a house जिसमें आप उसकी पूरी ये सप्लाई स्कीम्स को डिजाइन करते थे. इस साल आई डोंट नो कि वो कहाँ तक सर कामयाब होते हैं, बिकॉज ही इज गिविंग लेक्चर ऑनलाइन, जो है शायद उसमें भी नहीं किया आप लोगों ने. सो इन दैट वी कैन यू कैन से गिव द आइडिया कि वहां पर सॉलिड लाइन शो करती है एक प्रॉपर, मतलब यहाँ पर डिफरेंट लाइंस हैं जो शायद आपने ड्राइंग 1 में देखा हो, एक सिंबल्स पड़े थे, दैट दिस शोज अस दैट दिस सिंबल सॉलिड है, डॉटेड है, रिजिड लाइन है, लाइंस को शो करते हैं. इवन इन सीवरेज सिस्टम लाइट, डार्क और वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन से यूज होते हैं, 110 की लाइन डिफरेंट होगी 220 के वोल्टेज. सो सम टाइम वी यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल्स फॉर दैट वन. एनी अदर? समझ आया? क्लियर हुआ? तो बोल नहीं रहा. क्वेश्चन किसी का है? किसी को कुछ पूछना है? वाटर टैंक में विंड पाइप यूज करते हैं सर, वो किस पर्पस के लिए होता है? वाटर टैंक में कौन सा यूज करते हैं सर वो जो विंड पाइप का कह रहे थे, विंड पाइप. वेंट पाइप. ओके, वन मोर थिंग. ओवरहेड वाटर टैंक जो होता है उसमें वेंट पाइप इसलिए जरूरी होता है. आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. अगर आप एक टैंक हो के नीचे एक आप कैप लगाओ और उसको ऊपर से प्रॉपर एयर टाइट कर दो, क्या उसमें से पानी निकलेगा?
कभी किया नहीं ऐसे, पता नहीं, शायद वो मेरे ख्याल से नहीं निकलेगा। आप एक सिंपल बॉटल लेके एग्जांपल कर सकते हो। 1.5 लीटर की बॉटल लो, उसके बॉटम पे टैब लगाओ, ठीक है, और ऊपर से उसको एयर टाइट कर दो, उसमें एयर ब्लॉक कर दो, ठीक है, पानी कभी नहीं निकलेगा। जब भी उसमें पानी एयर ट्रैप होगी, पानी कभी नहीं निकलेगा। जो पर हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड अ वाटर, एक पाइप, सिंपल पाइप देते हैं जो कि वाटर में डिप होता है इनसाइड द टैंक, और उसका अपर एंड जो होता है वो इनटू द एयर होता है, that release the air vent pressure from that tank and water flow with a very high speed, ठीक है। तो वेंट पाइप ओवरहेड वाटर टैंक में देना जरूरी है ताकि उसके अंदर की ट्रैप्ड एयर बाहर निकले, ठीक है। समटाइम we provide the air pockets also within the supply, तो जहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो वो भी देते हैं, बट if you provide a proper वेंट पाइप तो वो जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्या पूछा था? सर एक ही पूछा है, दूसरा तो कोई नहीं फिलहाल पूछा। ठीक है, ये वेंट पाइप जरूरी है। और दूसरी चीज, वेंट पाइप के अलावा ना ओवरहेड वाटर टैंक में नॉर्मली वी प्रोवाइड अरेंजमेंट सच लाइक दैट कि एक सप्लाई होगी फॉर फीडिंग और फिलिंग, बट टेक द सेपरेट सप्लाई फॉर ईच फ्लोर इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिडक्शन ऑफ प्रेशर, कि हर एक में सेम प्रेशर आए और पाइप का पानी का जो प्रेशर है वो रिड्यूस ना हो। तो ये इंश्योर करना है आप लोगों ने कि उसमें मतलब डिफरेंट ना हो। ऑल्सो द वाटर सप्लाई विच इज गोइंग अपवर्ड फॉर फिलिंग, वो कम होती है, जो ऊपर से पाइप नीचे आएंगे मेन सप्लाई के फॉर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, वो हैवी होगी ताकि उसमें प्रेशर ना आए, ठीक है, पानी का प्रेशर आपका विद फ्लो आए। ऑब्वियसली डिपेंड्स कि जो उसका पाइप का डाया क्या है, किस हाइट पे है, एलिवेशन क्या है, बहुत सारे मैटर्स उसमें करते हैं चीजें। सर वो अक्सर देखे ना 2, 3 या 4 भी तकरीबन लगाए होते हैं विंड पाइप, यानी कि वो फिर वाटर टैंक के साइज करते हैं, यानी कि कितनी हाँ सक्शन बिल्कुल, क्रिएट होगी तो पानी नीचे बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, वाटर टैंक के साइज पे भी डिपेंड करते हैं, और दूसरी वो डिपेंड करते हैं कितनी सप्लाई आउट कर रहे हो। नॉर्मली हर सप्लाई के साथ वेंट पाइप लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं ताकि उसमें से सारी एयर रिलीज हो जाए, वाटर जो है वो फुल प्रेशर के साथ वापस आए, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर ये जो घरों में स्विमिंग पूल्स वगैरह बने होते हैं, इनको OHW के साथ कनेक्ट करेंगे या इनका सारा सिस्टम सेपरेट रखेंगे? इनको किसके साथ कनेक्ट करेंगे? ओवरहेड वाटर रिजर्वायर। अच्छा, जहां तक पानी की सप्लाई की बात है ना, तो वो तो आप डायरेक्टली ओवरहेड वाटर रिजर्वायर से ले सकते हो, ठीक है। और यू कैन डिपेंड करता है कि अगर आपका डायरेक्ट सिस्टम है, डायरेक्ट में तो आप फिर मेन सप्लाई से लोगे, और अगर इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड से लोगे, ठीक है। दूसरी चीज, इनका सीवरेज मैटर करता है। वाटर की फिलिंग तो ये कर ही लेते हैं ओवरहेड वाटर, बट सीवर सिस्टम जो पूरे घर का होता है, स्विमिंग पूल, बिकॉज दे आर एट सर्टेन डेप्थ, तो उस केस में नॉर्मली अगर तो वो आपके बाय वाले फ्लोर से काफी ऊंचा है स्विमिंग पूल, तो फिर तो वो अंडर ग्रेविटी फ्लो कर जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू यूज पंप्स। अगर वो एक्सकवेशन करके आपके बेसमेंट से भी नीचे जा रहा है स्विमिंग पूल, सो यू हैव टू यूज पंप्स टू ड्रेन आउट दैट पाइप ऑफ दैट स्विमिंग पूल। एंड रिमेनिंग इट्स आल्सो अ बाय लॉज। अगर आप वाटर सप्लाई की बात करो, बाय लॉज ऑफ डिफरेंट एजेंसीज लाइक वासा, एलडीए, डीएचए, इनका अपना अपना बाय लॉज है कि यू कैन नॉट प्रोवाइड पंप डायरेक्टली इनटू मेन सप्लाई, कि जो ओवरहेड वाटर टैंक को फीड करता है, आप उसमें पंप या वो नहीं लगा सकते, क्या उसे कहते हैं, यू हैव टू अंडरग्राउंड बनाना है, फ्रॉम दैट यू टेक द वाटर अप टू द टॉप वाटर रिजर्वायर। सिमिलरली जो सीवरेज सिस्टम है, that cannot go directly into the main Vasa supply system. First you have to provide the septic tank, उसमें फिल करे ताकि सॉइल उसमें डिपॉजिट होए, ओनली वाटर गो आउटसाइड। ये डिपेंड करता है हर सोसाइटी की के उसके बायलॉज के। नॉर्मली डीए में ऐसे फॉलो होता है और बाकियों में डिफरेंट व्यू होता है। जो कॉर्पोरेशन के अंडर आती है सोसाइटीज, वो इतना इसको। कोई और कुछ पूछना चाहता है? यार कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना चाहते हो?
नो सर। मैं ये आज की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप उस पे भी पूछ सकते हो ग्रुप पे, या आप मैसेज कर सकते हो। आई थिंक सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी मे वाइंड अप द लेक्चर और नॉट। ठीक है, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं आज का। अगर कोई क्वेश्चन हुआ, यू मे आस्क मी व्हेनेवर यू वांट लेटर ऑन। ठीक है।